Hey 11th class political science students, welcome back to our channel. We have done three parts of the chapter Rights in Indian Constitution, and today we are going to do fourth part of the same chapter. In the last class we have done meaning of fundamental rights along with its type, and I have told you the major description of fundamental rights as well. And the last class we have discussed two examples basically that was related to caste based discrimination and one was related to gender based discrimination. In first we have seen that there was a person with his friend, he was going for a cup of tea, and because of his caste his friend was served a tea in a very bad mud cup only, and he was served tea in a very nice cup because of his upper caste. So from today we are going to start the explanation of those two examples. Basically, it is asked from you if it is any type of example of discrimination. So these are the examples of clear discrimination. Why? Because in one instance we were able to see that discrimination was on the basis of caste, and in another it was based on gender. Because we were able to see that some females were fired out of their job because of their age factor, and so in the same work male were allowed to do that work. So do you think that such discrimination is justified? क्या आपको लगता है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है, रैशनल है? So of course the answer will be no, because on any of the basis our constitution prohibits discrimination specially. So if we able to understand right to equality, basically what does it say? Right to equality tries to do away with such and other discrimination. जो राइट टू इक्वालिटी है बेसिकली वो आपको प्रोहिबिट करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से. And in which manner it prohibits? Because it is providing us equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship. ये जितने भी आपके पब्लिक प्लेसेस हैं आपकी इक्वल एक्सेस इंश्योर करता है. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. और किसी भी पर्सन के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, place of birth. No any person can be discriminated, right? It also prohibits any discrimination in public employment or any of the above mentioned basis. अब देखो इस जो आपका जो राइट टू इक्वालिटी है बेसिकली आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है. क्या? क्योंकि देखो अगर राइट टू इक्वालिटी आपको नहीं मिल रहा ना, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, बिकॉज इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which should be there, which should be present in our society. So अब देखो जैसे कि सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है राइट टू इक्वालिटी? मतलब दैट देयर विल बी इक्वालिटी, देयर विल बी इक्वल एक्सेस टू एवरी पब्लिक प्लेस. इट मीन्स एवरी पर्सन इज परमिटेड टू एंटर इन एनी पब्लिक प्लेस. यू कांट प्रोहिबिट. देखो पास्ट में क्या होता था, पास्ट में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री से एग्जाम्पल स्टडी किए होंगे, यू ऑल आर अवेयर आई थिंक बाय द स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, in which manner, in which situation he has got education, that he had to sit at the places of the shoes of upper class students. ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एजुकेशन गेन की. And that's why in our constitution when it was framing we tried to establish equality, so that no person can be discriminated on any basis, right? Along with that it also provide us opportunity, equal opportunity basically. Opportunity in which area? Opportunity in the area of employment. अगर मान लिया कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो आप किसी पर्सन को ये नहीं बोलोगे कि आपकी कास्ट ये है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो. गॉट इट? और ये वाला राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि इसके थ्रू ही क्या इंश्योर होता है? सभी की इक्वल एक्सेस इंश्योर होती है सारे के सारे प्लेसेस तक.
गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा? राइट टू इक्वालिटी में एक तो क्या मेंशन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो मेंशन कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन तक सभी की एक्सेस इक्वल हो सके। And in the area of occupation, employment also, people should not be discriminated on any basis. उसके बाद इसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमने किया है दैट इज द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हमने अनटचेबिलिटी को इसमें रिमूव कर दिया। अब अनटचेबिलिटी क्या थी? इट वॉज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी की सबसे आप कंसीडर कर सकते हो सबसे क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन, यानी सबसे खराब प्रैक्टिस थी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, और इसको हमने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। Now keep in your mind that untouchability has been abolished under Article 17 of Indian Constitution. और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि लोगों को अनटचेबल, एक स्पेसिफिक क्लास हमने बना दी, कैटेगरी हमने बना दी कि ये लोग अनटचेबल हैं। उनका काम क्या होगा? सर्विंग करने का होगा, बट वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपर क्लास के किसी भी पर्सन को टच नहीं करेंगे। अगर टच किया तो इट मीन्स क्या हो गया? आप भी अनटचेबल हो गए। ऐसी सोसाइटी में एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते थे। बट एज वी फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी ट्राइड टू अबॉलिश इट। But in society, in some of the examples, we are able to see that untouchability is existing in today's time also. But according to Constitution, it is a crime. You can't consider any person untouchable. So three things we have discussed under article, basically under right to equality. First, that is basically equality before law, you can say, right? Along with that, equal access to all public places. After that, we have discussed equal opportunity, right? Equal opportunity in the area of occupation. And now we have discussed abolition of untouchability as well. And now one more thing that is under right to equality, that is the regarding the abolition of titles basically. In last class also I told you कि पहले क्या होता था कि टाइटल्स दे दिए जाते थे। टाइटल्स कैसे? जैसे राजा राम मोहन रॉय, राजा भी टाइटल, रॉय भी टाइटल, है ना? और वो टाइटल्स बेसिकली क्या करते थे? वो टाइटल सोसाइटी में इनइक्वालिटी को क्रिएट करते थे। क्योंकि अगर आपके पास वो वाला टाइटल है जो आपको कहीं ना कहीं सुप्रीम शो करता है, सो आप दूसरों को इंफीरियर वे में ट्रीट करना शुरू कर सकते हो। सो जस्ट टू अबॉलिश इट वी हैव डन दैट प्रोविजन सो दैट एनी पर्सन कैन नॉट use those kind of titles, and this is also for the establishment of equality in the society, है ना? हालांकि देखो, जैसे कि नाम के आगे ये यूज हो सकता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। दीज आर नॉट टाइटल्स, बेसिकली दीज आर दी ऑनर। ये यूज हो सकते हैं, कीप इन योर माइंड। और जो टाइटल्स यूज हो सकते हैं दे कैन बी मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक फील्ड टाइटल। पर आपने देखो सुना होगा परमवीर चक्र दिस पर्सन, शौर्यवीर चक्र दिस पर्सन। सो बेसिकली अगर मिलिट्री से रिलेटेड, एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड किसी पर्सन को टाइटल मिलते हैं दे कैन बी यूज्ड, बट एनी अदर टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड। गॉट इट? अलॉन्ग विद दैट, इसमें ये वाला जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 14 to 18 बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, इसने सोसाइटी में क्या एस्टैब्लिश कर दिया? ट्रू डेमोक्रेसी। Because till then you are not considering the citizens of your country in equal manner, you cannot say that democracy is actually working in your society, in your state, in your country, right? Because it is the article which is improving the dignity, status and honor of every individual, जिसके थ्रू आपने हर एक इंडिविजुअल के माइंड में ये फीलिंग जनरेट कर दी कि सभी इक्वल हैं। गॉट इट? Along with that, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, have you read the preamble of our constitution? How does it describe equality? You will find the preamble mention two things about equality. अब देखो क्या होगा कि क्या आपने कभी preamble पढ़ी है? In 9th class you must have studied. preamble का एक टर्म, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो क्या उसमें equality mention है?
So answer is yes, equality is mentioned in the preamble of our constitution. Three words are mentioned basically there: equality, liberty and fraternity. Right? You will find that the preamble mentioned two things about equality. अब देखो इक्वालिटी, आपकी जो इक्वालिटी होगी वो क्या मेंशन करती है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तो आप इक्वल होगे और दूसरा आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का। And equality of opportunity means that all the section of society enjoy equal opportunity. Equal opportunity का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को equal opportunity वो enjoy कर सकता है। For example, I give example of any job. If there is any, you can say any recruitment, any job, so every person is eligible. आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि आपकी कास्ट ये है, हम आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप क्योंकि अनटचेबल कैटेगरी से आते हो तो हम आपको इस जॉब के लिए इनएलिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो बट इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन? तो हमारी सोसाइटी जिसमें इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है उसमें क्या मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का? तो इसका आंसर हमें क्या बताया गया है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. It means the constitution clarifies that the government can implement special scheme and measures to for improving the condition of certain section of society, children, women and the socially and educationally backward classes. इट मीन्स क्या हुआ कि एक्चुअल में इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे अकॉर्डिंग, बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, तो अगर हमें इक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी है तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स और बहुत सारे मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. आप लोगों ने देखा होगा कि रिजर्वेशन इज द कंसेप्ट, है ना? और यही देखो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशन. जब कोई जॉब होती है, एडमिशन लेने की टर्न आती है, अब जैसे आप 12th करोगे तो क्या होगा? सीयूईटी का एग्जाम होगा एंड देयर विल बी द लिस्ट फॉर द रिजल्ट्स, और आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा. बट देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट. व्हाई? बिकॉज वी वांट देम टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ so that the people can show their representation in every field. Got it? अब देखो, इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? 16, जो हमारा आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका 4th पार्ट है, वो क्या बोलता है कि अगर सोसाइटी में, स्टेट में गवर्नमेंट ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेती है कि रिजर्वेशन कर देती है, तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है. नो, इसका मतलब क्या हुआ है? दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन रियल मैनर, क्योंकि आप सोसाइटी को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इसीलिए हमने रिजर्वेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन. रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक सोसाइटी से राइट ले लिया और दूसरे को दे दिए. नो, because with the help of reservation we are trying to uplift those person who were not able to do so from a long year ago. Got it? I hope it is clear to you. अब देखो, ऊपर आपसे ना कुछ मेंशन है. क्या मेंशन है? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointments or post in favor of any backward class of citizens which is in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. अब यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेन किया गया है कि एक तरफ आपने राइट टू इक्वालिटी की बात की बेसिकली, और दूसरी तरफ आपने एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट दे दिया. तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट विल बी द क्वेश्चन इन योर माइंड? इफ वी आर गिविंग रिजर्वेशन देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी, एंड इफ देयर इज इक्वालिटी व्हाट इज द यूज ऑफ रिजर्वेशन? राइट? इट कैन बी इन योर माइंड. So in actually reservation basically क्या है? Reservation is a method which can be used by the government to ensure equality, because there are some people who are not able to develop themselves. Let me give example. Suppose आपकी क्लास में, आपके स्कूल में कोई रेस हो रही है और उस रेस में 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. One that is physically stable, completely fit, and second that is physically disabled.
और आपने क्या कर दिया, उन दोनों को एक ही रेस में पार्टिसिपेट करा दिया। और आप लोग बोल रहे हो क्योंकि जो फिजिकली एबल बच्चा है ना वो जीत गया क्योंकि वो रेस में आगे भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था। सो कैन यू से इट इज इक्वालिटी? देखने में तो क्या लगे कि दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, सो देयर शुड बी इक्वालिटी, है ना। बट इन एक्चुअल बेसिस इट इज रिप्रेजेंटिंग इन इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। और इसीलिए जो लोग कभी से अनइक्वल मेथड में ट्रीट होते आ रहे थे, जिनको आप इनइक्वली ट्रीट करते आ रहे थे इतने सालों तक, अगर आप उनको अब एक इक्वल रेस में लेके आओगे ना, सो दे विल नॉट बी एबल टू develop themselves, they will not be able to represent themselves. So to provide them equal opportunity, to ensure them equality on real basis, there is the concept of reservation. इसीलिए रिजर्वेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली इट्स अ मैनर टू डील विद डिफरेंसेस, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस थी हमारी कहीं ना कहीं, हम उनके अपलिफ्टमेंट का वर्क कर सकते हैं। और स्टेट उसके लिए पॉलिसीज बना सकता है। यू विल नॉट से इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ हियर इज वन मोर स्टोरी. You are the judge and you will have to understand the story. After that you will have to answer the question. What is the story? You have received a postcard from the Haribandhu who identifies himself as a member of Dalit community. अब ये एक पर्सन की स्टोरी है, दलित कम्युनिटी की स्टोरी है, और ये जो पर्सन बिलोंग करते हैं, he is from Odisha basically. And problem is that in his region there was a custom. And the custom was that they had to wash the feet of the groom whenever there was any marriage ceremony or any kind of other function. मतलब उनको किसी लोगों के ना जो फिट होते थे पैर वो वॉश करने पड़ते थे. And because of what? Because of their social background, because of their caste only. बट अब जो बेटर है वो क्या है कि उनकी कम्युनिटी ने ऐसा करने से डिनाई कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज कन्फ्लिक्ट. एंड व्हाट वाज दैट कन्फ्लिक्ट? दैट अपर क्लास पीपल दे ट्राई टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम देम. और इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी कैटेगरी की 4 विमेन को बीटअप कर दिया, पीटा, एंड अनदर वन वेरी इट नैग्ड आल्सो. मतलब इतनी हार्श तरीके से उनसे रिवेंज लेने की कोशिश की गई. लेकिन जो पोस्ट कार्ड का राइटर है वो क्या बोलते हैं, वो ही सेज our children are educated and they are not willing to do customary job or washing the feet of upper caste man, clear the loft towers of after the marriage feast and the wash the utensil. जो राइटर है उन्होंने क्या लिखा कि हमारी कम्युनिटी अब ये वर्क नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे चिल्ड्रन एजुकेटेड हैं और वो ऐसा वर्क नहीं करेंगे, है ना. तो अब देखो, assuming the fact given above are correct, you have to decide. अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या, आई थिंक अगर ऊपर वाला चैप्टर आपको क्लियर है अभी तक का, यू विल बी एबल टू आंसर. डज दिस केस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्या आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में कोई राइट एक्सप्लॉइट हुआ है? ऑफ कोर्स राइट एक्सप्लॉइट हुआ है. रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड, राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर जॉब, आप कोई जॉब है तो आपको डिनाई नहीं किया जाएगा आपकी कास्ट की वजह से. बट यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस कास्ट द पीपल आर फोर्स टू डू अ स्पेशल वर्क, दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट एनी अदर ऑक्यूपेशन. तो ये क्या हो गया, उनके राइट टू इक्वालिटी का एक्सप्लॉइटेशन हो गया. गॉट इट? आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आफ्टर दैट व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस? अगर गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी? So government will have to take strict action against those people who are doing that, because right to equality states that every person is equal and no one can be discriminated on any basis. And if this kind of example, this kind of discrimination is existing in the society, it's the responsibility of our duty to deal with it in proper manner. So government will have to ensure justice to all these people. Along with that, a punishment provision should be there for those people who are forcing any other person to continue
a special type of occupation because of their caste only. That can be the responsibility of the government. Got it? Hope it is clear to all of you. After that, one thing is given to that is related to Article 21. So basically, Article 21 of Indian Constitution, it deals with right to life. So, protection of life and personal liberty. Article 21, it is explaining protection of life and personal liberty. It means क्या हुआ? No person shall be deprived of his life on or personal liberty except according to procedure established by law. यानी आप किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से, उसकी प्रॉपर्टी से आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते जब तक कोई एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश नहीं हुई है विद द हेल्प ऑफ लॉ. You can't do that. It means right to life is a fundamental right. और आप किसी पर्सन की डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट करके आप उससे उसकी राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ जो डिग्निटी से फुलफिल हो, रिस्पेक्ट से फुलफिल हो, और आप किसी पर्सन को ऐसा करने से स्टॉप नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते. यू कांट स्टॉप एनी पर्सन फ्रॉम लिविंग देयर लाइफ इन अ डिग्निफाइड मैनर. राइट? सो till now we have discussed right to equality basically, and we have studied that fundamental rights of 6 types. So now we are coming on second type of fundamental right, that is right to freedom. अब देखो, अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो ना बेसिकली, सो फ्रीडम एंड इक्वालिटी बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. क्यों? क्योंकि एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं है. So equality and freedom or liberty are the two rights that are the most essential to a democracy. अब देखो, अगर आपने बोल दिया कि आपकी कंट्री में ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आपने लोगों को अगर लिबर्टी नहीं दी, फ्रीडम नहीं दी, इक्वालिटी नहीं दी, तो उस डेमोक्रेसी का कोई एडवांटेज नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर. और अगर आपने लिबर्टी और इक्वालिटी में से एक प्रोवाइड करवा दी और दूसरी प्रोवाइड नहीं कराई, देयर इज नो यूज ऑफ दैट वन थिंग, बिकॉज लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट एंड इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी इज ऑफ नो यूज. राइट? बिकॉज लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन. लिबर्टी का मतलब आपको फ्रीडम है अपने आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने एक्शंस के रिगार्डिंग कुछ फ्रीडम है. But keep in your mind, freedom, it does not mean freedom to do anything that one desires. फ्रीडम का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप वो काम कर लो जो आप करना चाहते हो. Right? If this kind of situation is there that anyone is free to do whatever he or she is willing to do, so that will create instability in the society. That will create the system जो क्या करेगा, might is right, जिसकी लाठी उसकी भैंस. राइट? क्योंकि ऐसे में तो क्या होगा, जो पावरफुल होंगे वो रिप्रेस कर देंगे वीक को, लेस पावरफुल पीपल को. इफ दैट वर बी परमिटेड, देन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम. क्योंकि अगर आपने ऐसी फ्रीडम एस्टेब्लिश कर दी कि आप जो चाहो वो करो, तो ऐसे में तो बहुत सारे लोगों की फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and order situation. इसीलिए क्या होता है एक्चुअल में फ्रीडम का मतलब होता है कि देखो, जी और जीने दो की पॉलिसी होती है ना. मतलब आप वर्क वो करो जिससे आपकी डिजायर्स फुलफिल होती हैं, बट यू विल हैव टू डू वर्क इन दैट मैनर कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो, तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे पर्सन की लाइफ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू, अगर आपके पास फ्रीडम है कि आप म्यूजिक सुनो, तो आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका इंपैक्ट आप तक ही होना चाहिए. अगर आप ये सोचोगे कि मेरी तो फ्रीडम है, मेरे को म्यूजिक सुनना है, बट आप उसको इतनी तेज आवाज में सुन रहे हो कि किसी एक बीमार आदमी के हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू आर वायलेटिंग द राइट ऑफ एनी अदर पर्सन. दैट इज नॉट राइट टू फ्रीडम.
क्योंकि आपके राइट्स कहां तक हैं, जहां दूसरे के राइट्स शुरू होते हैं वहां तक आपके राइट्स हैं, जहां दूसरे के राइट्स शुरू हुए वैसे ही आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं. That's why we say rights and duties are also correlated with each other. So actual meaning of freedom is any person is able to do work in that manner that he or she can fulfill their desire also, but their desires, their working sense should be in that manner that it should not create any kind of trouble, any harm to any other person. Got it? In detail, what is freedom, types of freedom, dimensions of freedom, we will discuss in second book, that is political theory, and there is a complete chapter related freedom or liberty, you can say, right? So I think two rights are clear to you, basically right to equality, in which we have discussed that there will be equal opportunity, there will be equal access for everyone to public places. Along with that, there will be abolition of untouchability, abolition of titles also. These type of structure, these type of provisions we have discussed in right to equality. And right to freedom means that you are able to express your thought, you are able to do your actions, but there should be positive restrictions on each and every task. You are not, keep in your mind that any of the action is not absolute. Always there is any positive restriction. And right to freedom is the very best example of that. I hope till now two rights we have discussed, and I hope these two rights are clear to all of you. Rest of the fundamental rights we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.